Jai Hind everyone. Welcome to Volume Education Academy. So today we will start the new topic that is preposition. And preposition is important for all the competitive exams. From basic learning of English to the competitive level, prepositions comes. So let's start one by one. We will understand everything about preposition. Okay. So first of all, what is a preposition? Preposition होता क्या है? So, preposition is a word that shows relation. Relation of what? Relation of time, position, direction of noun. Okay, of noun और pronoun. Noun और pronoun का relation बताता है, यानी कि position, time और direction. कि नाउन जो है वो ऊपर है, नीचे है, टाइम क्या है उसका, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये सारी चीजें आपको किससे पता चलती है? थ्रू प्रेपोजिशन. सो आज का टॉपिक हमारा प्रेपोजिशन ही है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो preposition is a word that shows the relation, position, time or direction of a noun pronoun with other parts of a sentence. Other parts of the sentence के साथ ये क्या बताती है? आपको relation बताती है कि उस जो आपका नाउन है उसकी पोजीशन क्या है, उसका टाइम क्या है, डायरेक्शन क्या है. वी गेट टू न्यू थ्रू preposition. Okay, so these are your preposition. अब हम, for example, the people travel during the day. The people travel during the day. ठीक है, तो हमें टाइम जो है, मतलब people जो ट्रैवल कर रहे हैं वो डे के समय, डे के टाइम पर ट्रैवल कर रहे हैं. सो हमें कैसे पता चल रहा है? थ्रू दिस वर्ड, योर ड्यूरिंग. ठीक है, थ्रू ड्यूरिंग वी गेट टू न्यू दैट the people are traveling during the day, या डे के टाइम पर ट्रैवल कर रहे हैं. The tournament was cancelled after the heavy rainfall. जो टूर्नामेंट था वो कैंसल्ड हो गया आफ्टर द हेवी रेनफॉल. रेनफॉल के बाद, हेवी रेनफॉल के बाद क्या हुआ? आपका टूर्नामेंट कैंसिल हो गया. सो हियर योर वर्ड ड्यूरिंग एंड आफ्टर इज योर preposition. Okay. So next is your टाइप्स ऑफ preposition. ठीक है, जो आपके टाइप्स ऑफ preposition होते हैं उसमें सबसे पहला preposition क्या है आपका? prepositions of time. Okay, it shows the time. preposition of time is which shows the time कि कोई भी चीज कब हो रही है. For example, words like at, on, in, before, after, ये सारे आपको क्या बताते हैं? टाइम, कि कोई भी चीज कब हो रही है. द क्लास स्टार्ट्स एट 9. तो जो आपकी क्लास है वो 9 पर स्टार्ट हो रही है. वी विल मीट ऑन मंडे. तो हम मंडे को मिल रहे हैं. थ्रू ऑन वी गेट टू न्यू दी डे. सो ये सारे हमारे क्या है? preposition ऑफ टाइम. नेक्स्ट अप वी हैव prepositions ऑफ प्लेस. नेक्स्ट है हमारा preposition ऑफ प्लेस. preposition ऑफ प्लेस shows where something is. ठीक है, कोई भी चीज कहाँ है, where. ठीक है, वर्ड्स इसमें क्या क्या यूज करते हैं हम? इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, नियर. फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज अंडर द टेबल. जो कैट है इट इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है. तो अंडर इज योर preposition. शी इज इन द रूम. सो इन इज योर preposition, that is it is inside the room. Then we have prepositions of direction. preposition of direction or movement. ये क्या करता है? इट शोज मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस क्या करता है? मूवमेंट शो करता है, यानी कि डायरेक्शन भी शो करता है. फॉर एग्जाम्पल, जो वर्ड्स इसके अंडर आते हैं वो कौन कौन से हैं? टू, इनटू, अक्रॉस, थ्रू, टुवर्ड्स. ओके, ही रैन इनटू द हाउस. He ran into the house. So into is your preposition of direction. The ball rolled across the road.
Across is your preposition of direction or movement. Then we have preposition of reason और purpose. Next है हमारा preposition of reason और purpose. ये हमें बताता है reason, कोई भी चीज क्यों हो रही है या क्या उसका purpose था. ठीक है, तो इसमें हमारे word आते हैं for, your because, due to. तो ये सारे words आपके आते हैं preposition of reason में. For example, she stayed home because of fever. He studied hard for success. Then we have preposition of agency. Preposition of agency मतलब कोई भी काम किसके थ्रू हुआ है वो बताते हैं ये. Like words we use here are by, ठीक है, and with. For example, the book was written by her. He cut the paper with scissors. Then prepositions of manner. Prepositions of manner shows how something has been done. कोई भी चीज कैसे हुई है, किस मैनर में हुई है, उसको हमें कौन बताता है? preposition of manner. Words like your by, in, with, ये सारे words आपके इसमें आते हैं. She spoke in a soft voice. So your in, he performed with elegance. In and with here is your preposition. नेक्स्ट इज योर, अब अभी तक हमने क्या पढ़ा? preposition के टाइप्स, लाइक preposition ऑफ टाइम, preposition ऑफ मैनर, preposition ऑफ मैनर्जी, एजेंसीज, preposition ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन. ये सारे हमने क्या पढ़े? preposition के टाइप्स पढ़े. नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि कौन सा preposition का वर्ड कहाँ यूज होगा या उसका क्या पर्पस होगा. ठीक है, so now comes the main part of preposition. Now you have to listen to it very carefully. Okay, so we will move to the words. जो आपके words हैं और उनका यूज कैसे होगा हम वो देखेंगे. सबसे पहले हमारा वर्ड क्या है? हमारा वर्ड है on, राइट? हमारा वर्ड यहां पर है on. ठीक है, सो जो on होता है, on shows days and dates. ठीक है, on हम कब यूज करते हैं? डे एंड डेट्स के लिए. जैसे द पीटीएम विल बी ऑन 5 अगस्त या 26 अगस्त या 28 अगस्त. ठीक है, सो जो आपके डे एंड डेट्स को बताते हैं तब हम यूज करते हैं ऑन. एंड व्हेन समथिंग इज ऑन द सरफेस, किसी चीज के ऊपर हो. ठीक है, जैसे ये आपका पेन है, ये इसके ऊपर है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? ऑन. ठीक है, देन वी हैव डिवाइसेस. अगर कोई डिवाइसेस पे काम कर रहा है, लाइक फोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, ही इज स्टडिंग ऑन अ लैपटॉप, तो हम क्या यूज करते हैं? ऑन. ठीक है, क्योंकि हम लैपटॉप के अंदर थोड़ी पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग, मतलब जो भी मटेरियल है बाहर ही तो आ रहा है वो सारा, सो हम ऑन यूज करते हैं जब कोई भी डिवाइसेस होते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल भी गिवन है आपका. योर एग्जाम्पल इज ऑल्सो देयर. वेट अ मिनट. So the example is, I will watch a movie on my I will watch a movie on my laptop tonight. Okay, so I will watch my movie on my laptop. Laptop में देखोगे, so we will use on. ठीक है, हम on use करेंगे. Then the second word is your at. ठीक है, at हम कब use करते हैं? When it shows a particular time. एक particular time दिखाने के लिए, पार्ट ऑफ अ प्लेस बताने के लिए. ठीक है, कि आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज द पार्टी इन माई हाउस एट दी एट माई रूम. ठीक है, या एट माई कजिन्स रूम या एट माई सिस्टर्स रूम. सो जब आप किसी भी प्लेस का एक पार्ट बताते हो, जैसे हाउस का एक पार्ट मैंने बताया कि डाइनिंग टेबल, या मैंने बताया डाइनिंग रूम या माई रूम, सिस्टर्स रूम. सो when we refer to a part of a place, we use at. For example,
माई ब्रदर विल बी होम एट 8 o'clock. जो मेरा भाई है ही विल बी एट होम एट 8 o'clock. सो इट इज रेफरिंग अ टाइम, जब टाइम को रेफर करते हैं. देन वी हैव इन क्या होता है आपका? इट रेफर्स डे. डे को रेफर करने के लिए हम यूज करते हैं मंथ, सीजन, ईयर, स्टेट एंड लोकेशन. फॉर एग्जाम्पल, द विंटर वेकेशंस विल स्टार्ट इन डिसम्बर. ओके, सो इन जो है आपका डे को रेफर करने के लिए होता है, मंथ को रेफर करने के लिए, सीजन, ईयर, स्टेट एंड योर लोकेशन. राइट. देन वी हैव आफ्टर. आफ्टर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आफ्टर? आफ्टर मतलब बाद में ना. सो आफ्टर हम यूज करते हैं जब कोई भी टाइम लेटर को रेफर कर रहा हो या कोई भी पोजीशन लेटर पोजीशन हो. जैसे ही केम आफ्टर हर. ठीक है. सो जब पोजीशन को भी रेफर कर रहे हैं या प्लेस नेक्स्ट टू हिम या हर, या फिर लेटर टाइम को मेनली ये रेफर करता है, मतलब उसके बाद. जैसे ही विल मीट मी द डे आफ्टर टुमारो. ही विल मीट मी डे आफ्टर टुमारो. देन वी हैव सिंस. सिंस इज अ स्टार्ट ऑफ एन एक्शन. एक्शन का स्टार्ट जब हो रहा होता है, देन वी विल यूज सिंस. ठीक है. Annie has been sleeping since 4 o'clock. So Annie का जो सोने का प्रोसेस था वो कब से स्टार्ट हुआ? 4 o'clock. So we will use since when we refer to a start of a time. कोई भी टाइम मतलब वो चीज कब से हो रही है, तो हम यूज करते हैं since. Okay. Then we have towards. ठीक है. towards आपकी क्या होती है? डायरेक्शन बताती है. ठीक है. he is moving towards the museum road. ही इज मूविंग टूवर्ड्स दी स्कूल रोड. मतलब कि जिस तरफ स्कूल है उसी तरफ वो मूव कर रहा है, तो ये डायरेक्शन बताता है. आई होप इट इज क्लियर. देन वी हैव अक्रॉस. अक्रॉस जो होता है ना, हेयर वी हैव डिफरेंट मीनिंग्स. यहाँ पर एक्सपेंशन लिखा है, बट इसके अलावा भी अक्रॉस का मीनिंग होता है. अक्रॉस का मीनिंग ऑपोजिट भी होता है. ठीक है. सो एक होता है अक्रॉस का मतलब एक्सपेंशन, मतलब कि किसी भी चीज या किसी भी उसका कितना एक्सपेंड हो रखा है, कितना बढ़ रखा है, वो चीज कितना वो फैला हुआ है. लाइक माई बिजनेस हैज बीन एक्सटेंड. माई बिजनेस इज एक्सपेंड थ्रू आउट द वर्ल्ड. मेरा जो बिजनेस है वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है. ठीक है. एक्सपैंड हुआ है. उसके लिए भी हम अक्रॉस यूज करते हैं. माई बिजनेस इज अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है. और कहाँ यूज करते हैं हम अक्रॉस? जब कोई किसी को क्रॉस भी करता है उसके लिए भी हम अक्रॉस करते हैं. जैसे ही जम्प्ड अक्रॉस दी बॉल. ठीक है. मतलब बॉल के ऑपोजिट उसने जंप किया. राइट. सो देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ अक्रॉस हियर. इसका हम यूज भी देख लेते हैं यहाँ पर. दे स्प्रेड देयर बिजनेस अक्रॉस दी कंट्री. देन वी हैव बिहाइंड. बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पोजीशन एट द बैक. व्हाट इज बिहाइंड मी? अ बोर्ड. तो बिहाइंड वी यूज व्हेन वी आर रेफरिंग टू अ पोजीशन व्हिच इज बैक टू अस. ठीक है. जो पीछे हो उसमें हम यूज करते हैं बिहाइंड. देन इसका यूज देखते हैं. देयर इज अ मिस्ट्री बिहाइंड द डोर. डोर के पीछे क्या है? मिस्ट्री है. सो बिहाइंड रेफर्स टू अ पोजीशन एट द बैक. देन वी हैव फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ वी ऑल नो दैट इज जो सामने है. ठीक है. सामने जो भी चीज होती है, पोजीशन एट द फ्रंट, और सामने बोल सकते हैं. यूज क्या है? देयर इज अ मिरर इन फ्रंट ऑफ द विंडो. विंडो के फ्रंट में क्या है? देयर इज अ मिरर. देन वी हैव बिटवीन. Between is, it is used for two persons or things. दो पर्सन और थिंग्स के लिए ये यूज करते हैं हम बिटवीन. मतलब उसके जब बीच में हो, दो पर्सन के बीच में, तो बिटवीन. लाइक यहाँ पर ये बिटवीन है इन दो फिंगर्स के. दिस इज बिटवीन. ठीक है. सो बिटवीन रेफर्स व्हेन टू पर्सन और थिंग्स उनके बीच में कोई हो. सो चिंटू इज सिटिंग बिटवीन मी एंड वैशाली. चिंटू जो है वो मेरे और वैशाली के बीच में बैठा है. लाइक वैशाली इज हियर एंड आई एम हियर, और बीच में कौन है? चिंटू. ओके. देन वी हैव नेक्स्ट वर्ड दैट इज अमंग. राइट.
अमंग क्या होता है, जैसे बिटवीन हमें पता चला 2 पर्सन होंगे उसके बीच में, बट अमंग इज मोर देन 2 पर्सन और थिंग, 2 से ज्यादा, ठीक है, तब हम यूज करते हैं अमंग। लाइक नाउ, अब चिंटू वैशाली और मेरे बगल में नहीं है, बल्कि यहाँ पर और भी बच्चे हैं, तो मैं क्या यूज करूंगी, दैट चिंटू इज सिटिंग अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग द चिल्ड्रन। ओके, सो दीज आर योर, this is the meaning of your among. Then we have along. Along means होता है उसके साथ साथ, like अगर यहाँ से कोई मूव कर रहा है यहाँ तक, सेम जहां से इसका डिस्टेंस है यहाँ तक, इसके टेल तक, इसके एंड तक कोई मूव कर रहा है, तो वो हो जाएगा along. Like he is moving along this trail या along this path, या इस रास्ते के साथ साथ जा रहा है, मतलब उसके साथ साथ उसे बोला जाता है along. एग्जाम्पल, शी वॉक्स अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, जो रिवर का बैंक है उसके अलोंग शी रन्स या शी वॉक्स। ओके, देन वी हैव अगेंस्ट. अगेंस्ट इज when we are opposite of something, right? और contravention, जब हम opposite होते हैं या contravention में होते हैं, against बोला जाता है, जैसे she is against me, ठीक है, मतलब ये opinion में भी against हो सकते हैं और position में भी against हो सकते हैं, मतलब opposite एक तरह से, ठीक है। For example, one must not go against the country's laws, ठीक है, किसी को भी कंट्री के लॉज के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। देन वी हैव टू. टू जो होता है आपका वो किस लिए होता है, इट रेफर्स टू पीरियड, ठीक है, कि द क्लास विल बी फ्रॉम 4 to 5, मतलब 4 बजे से 5 बजे तक होगी, तो इस पीरियड को रेफर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टू। तो एक पीरियड को रेफर करने के लिए यूज होता है टू, प्लस डायरेक्शन के लिए भी ये यूज होता है टू। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू द न्यू दिल्ली स्टेशन, तो न्यू दिल्ली स्टेशन की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमें डायरेक्शन पता चल गई ना कि किस तरफ जा रहे हैं, हम न्यू दिल्ली स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। सो बाय यूजिंग टू वी ऑल्सो गेट टू न्यू द डायरेक्शन एज वेल। पीरियड का तो सबको पता है, बट डायरेक्शन का नहीं पता होता है, बट वी ऑल्सो व्हेन वी want to refer to a direction we use to, right? Then we have for. For जो होता है आपका क्या होता है, ड्यूरेशन, रिसीवर या बेनिफिट के लिए होता है, मतलब ड्यूरेशन बताने के लिए, जैसे दिस क्लास इज फॉर 2 मंथ, ठीक है, या 3 मंथ और 6 मंथ, तो हम क्या यूज करते हैं, फॉर। या रिसीवर, दिस इज फॉर यू, ठीक है, या बेनिफिट, ठीक है, दैट दिस इज फॉर योर गुड, ठीक है, या आई एम टीचिंग फॉर you to come first या for you to get selected in RIMC or any other exam, ठीक है। So for is used for duration, receiver and benefit. For example, the use is I have brought a cup of tea for you. It means वो आपके लिए लाए हैं, तो for जब receiver बताना हो तो भी हम क्या यूज करते हैं, we use for. Then we have by, ठीक है। बाय जो होता है आपका, इट शोज बिफोर गिवन टाइम, ठीक है, टाइम से पहले, ठीक है, लाइक आई वॉन्ट दी होमवर्क बाय टुमारो, मतलब मुझे कल तक होमवर्क चाहिए है, सो आई विल यूज बाय। या प्रॉक्सिमिटी बताने के लिए, प्रॉक्सिमिटी मतलब भी होता है आपका कि उस टाइम के आसपास चाहिए मुझे, जो मैंने टाइम बताया है आपको, ठीक है। या हम कब यूज करते हैं, मीन्स, जैसे हाउ डू यू कम, आई कम बाय बाईसाइकिल और बाय बस और बाय ट्रेन, बाय फुट, तो अपना मीन्स बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, बाय, राइट। देन वी हैव, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, लिटिल चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय बस, सो बाय हेयर इज योर, इट शोज द मीन्स शो करने के लिए भी वी यूज बाय, राइट। देन वी हैव, थोड़े से और हैं, अब ज्यादा नहीं है, जस्ट वेट फॉर मोर टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इनटू, ठीक है। इनटू जो है आपका वो किस लिए होता है,
आपका जब पोजीशन इनसाइड हो बट इट शुड हैव अ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन के साथ हो प्लस मूवमेंट के साथ होता है, तब हम इनटू करते हैं। लाइक द बॉल फेल इनटू द पिट, तो बॉल एक डायरेक्शन यानी कि फोर्स के साथ आई और वो तब गिरी। तो जब किसी फोर्स के साथ आए और किसी डायरेक्शन के साथ जाए तब हम यूज करते हैं इनटू। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू। ठीक है, इन जो होता है एक प्लेस पर जब रुकना होता है, इन इनसाइड। ठीक है, इनटू जब होता है वो चीज जब फोर्स से आती है या डायरेक्शन के साथ आती है अंदर। ठीक है, लाइक यू जम्प्ड इनटू द रिवर और इन द रिवर, रिवर में आप कूदे, सो इनटू यूज करोगे या इन, यू जम्प्ड इनटू द रिवर और इन द रिवर, इनटू द रिवर, राइट। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर से अंदर की तरफ कूद रहे हैं, वी आर जंपिंग इनसाइड दैट थिंग एंड वी आर इन अ मूवमेंट। ठीक है, हम रुके नहीं है, सो वी विल यूज इनटू। सो पोजीशन इनसाइड और डायरेक्शन के लिए यूज होता है हमारा इनटू। द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस, थीव्स जो हैं दे ब्रोक इनटू द हाउस, वो हाउस में क्या करे, वो घुस गए। ठीक है, दे ब्रोक इनटू द हाउस। नाउ द लास्ट थ्री वी आर हैविंग, नेक्स्ट इज फ्रॉम। फ्रॉम जो होता है इट ऑल्सो इट शोज द टाइम पीरियड एंड डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, मतलब माई हाउस इज 2 किलोमीटर्स फ्रॉम ISBT, तो ये डिस्टेंस बता रहा है आपको। ठीक है, तो फ्रॉम इज टेलिंग यू द डिस्टेंस ऑल्सो, एंड व्हाट इज ऑल्सो टेलिंग दिस, अ टाइम पीरियड ऑल्सो इट इज टेलिंग। ठीक है, कि कोई भी चीज कब से कब तक हुई है। ठीक है, टाइम पीरियड को भी बताता है और डिस्टेंस अपार्ट को भी। हिज हिज हाउस इज अराउंड अ किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, राइट। देन वी हैव बिफोर। बिफोर जो होता है वो कब यूज होता है, कोई भी चीज जब पहले हुई हो, टाइम्ड इवेंट्स, उसके लिए हम बिफोर यूज करते हैं, कोई भी चीज पहले होना। देन वी हैव ड्यूरिंग। ड्यूरिंग जो होता है थ्रू द ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड, उस ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में कितना हो रहा है, वी विल यूज ड्यूरिंग। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द वॉर मैनी पीपल सफर्ड हार्डशिप। ओके, सो दीज आर योर preposition, you all can see जो भी आपके ये preposition है, you all I hope you all understood this chapter, and what you need to do is you need to practice the question and you will be able to understand it more better. Okay, Jai Hind everyone, thank you.